Very good morning to all of you present in this morning session. Yesterday we have completed our first book, that was partnership account, and today we are going to start the new book, that is accountancy 12th accounting for companies. हमारा कंपनीज के लिए जो ये बुक है, स्पेशली ये कंपनीज के ऊपर बनी, क्योंकि आपने जो मैंने पहले बताया होगा, सर ने बताया होगा आपको, मैंने तो नहीं बताया शायद, कि सर ने आपको जो पहले बताया होगा कि आप +2 के अंदर आपके एनपीओ की अकाउंटिंग कैसे होती है वो आपको बताई जाएगी। उसके बाद पार्टनरशिप अकाउंटिंग, उसके बाद में आपकी कंपनी अकाउंटिंग, ये 3 प्रकार के अकाउंट्स आपके पास में इसमें जो है इस क्लास में है। तो हम इसमें आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो कंप्लीट कर चुके हैं, और एनपीओ की अकाउंटिंग जो है वो हम अगर भगवान ने चाहा तो जैसे स्कूल सितंबर में खुल जाएं तो हम वहाँ पर करवाएंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये आपका जो कंपनी अकाउंट है, ये आपका चैप्टर नंबर 7 बनता है अकाउंट्स के बुक के अनुसार। तो आज हम जो कंपनी अकाउंट के बारे में बात करेंगे। तो कंपनी अकाउंट होते क्या हैं, कंपनीज क्या होती हैं, कंपनीज कि जो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कंपनी, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द कंपनी, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ द कंपनी, and the topic will be what are the shares, which are the type of the shares, and what are the preference share and what are the equity shares. We will make the discussion in detail in this chapter. ठीक है जी। हाँ जी, तो हम शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि आपकी जो सोलवेटरशिप एंड पार्टनरशिप थी, कि in plus one class you studied about the sole proprietorship and the partnership, and some of the characteristics of sole proprietorship was very good, which was favorable for the small scale businesses. But the problem was that there was a lack of capital, lack of human power, and lack of risk bearing. It means there were some demerits of the sole proprietorship. Then a new organization came into existence, that was called as partnership. In partnership, the minimum 2 persons and maximum was 20, and according to New Company Act, it is 50. Means some of the demerits of sole proprietorship that was resolved by the partnership itself. But partnership has itself some demerits, just like having no longer existence. Partnership has also small capital in comparison to the company, have a large capital in comparison with the sole proprietorship, but having a small capital in comparison with the company. And there is no बिजनेस एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स कैन बी हायर्ड इन पार्टनरशिप, जबकि आपके कंपनी के अंदर इस प्रकार के प्रोफेशनल्स आप हायर कर सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि व्हेन द सोल प्रोप्राइटरशिप वाज देयर, some demerits were there, some limitations of sole proprietorship was there, and after it new business come into existence, that was called as partnership. And partnership has itself some problems. Then a company come into existence, and it is felt that company has some limitations. Then multinational company come into existence. In these days you can see the multinational companies are here and there, you can see nearby your places. तो अब जन, क्योंकि जिस प्रकार से ह्यूमन एक ऐसा है कि विच इंडोर्स ऑलवेज इन द न्यू थिंग्स एंड फाइंड आउट सम न्यू फॉर्म्स ऑफ एवरीथिंग, और उसमें जो उसको ठीक लगता है, सुटेबल लगता है, वो अडोप्ट भी करता रहता है। तो आपकी जो कमियां थी, जो आपकी सोलोटरशिप की और पार्टनरशिप की, उन कमियों को देखते हुए आपके कंपनी जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो वो आया। अब जो कंपनी की डेफिनेशन है क्या, तो हम ये कहें कि कंपनी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स formed through a process of law, formed through the process of law for the purpose of carrying on some business। कि यानी क्लियर इसमें बोला है कि कंपनी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन, वॉलंटरी एसोसिएशन है, कोई ज़बरदस्ती नहीं किसी को शामिल किया जाएगा। फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, वो जो कानून के अनुसार बनेगी। द पर्पज फॉर कैरिंग ऑन सम बिजनेस, वो इनको बिजनेस करने के लिए। इसका मतलब क्लियर हुआ कि देर इज नो पर्पज ऑफ ए सोशल सर्विस, देर इज नो पर्पज ऑफ ए पेट्रोलिज्म और एनी, but the main purpose is only and only
that is to run a business and to earn the profit. Although the other objectives of the company are different one matter, but the primary motive is to run a business and to get the profit. ठीक है जी। अब आपके जहाँ पर कुछ डेफिनेशन दी गई हैं, तो मुझे सबसे अच्छी जो डेफिनेशन लगती है प्रोफेसर हेने की लगती है। तो कहता है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कि कंपनी एक बनावटी आदमी जो कि कानून के द्वारा बना है, हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, जिसका जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और परपेचुअल सक्सेशन है और उसकी एक कॉमन सील है। तो ये आप प्लस वन के बिजनेस लिंक भी पढ़ते आए हैं और वही सेम जैसे वो यहाँ पर भी है। अब इसके हिसाब से हम कहें फीचर्स ऑफ ए कंपनी, तो आपकी कंपनी के फीचर्स कौन से हैं? फीचर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के फीचर है कौन से, हम उनका डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो फीचर्स कंपनी का भी मैंने जो डेफिनेशन बताई है उसी के अंदर ही सब कुछ चीज़ें हैं। तो इसमें जो डेफिनेशन जो मैंने बोली थी, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, तो ये आपकी डेफिनेशन थी। तो पहला आपका कहते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, तो पहले आपकी है सेपरेट लीगल एंटिटी, कि कंपनी जो है इट इज आर्टिफिशियल पर्सन। हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम बोलिए, प्रॉब्लम किसी को? हेलो हेलो, क्या कोई सुन नहीं पा रहे क्या? बोलिए। हाँ जी, तो ये करें कि एक मिनट। हाँ जी, आप कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, कि कंपनी है जो सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज ए सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर्स, ओनर से बिल्कुल अलग मानी जाती है। कंपनी जो है वो कभी भी आपकी ओनर या मैनेजमेंट के अंदर जो है वो नहीं होती है। मीन्स द मैनेजमेंट एंड द ओनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी। तो कंपनी जो है वो अपने जो ओनर्स हैं उनको अपना क्रेडिटर मानती है, जो उनकी मैनेजमेंट है वो उनको अपना एम्प्लॉय मानती है। तो वो जो एक प्रकार से सेपरेट लीगल होती है, बिल्कुल कानूनी रूप से वो अलग है, उसकी मान्यता होती है। नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन होता है शाश्वत जीवन। शाश्वत जीवन का मतलब ये हुआ कि कंपनी नेवर डाइज, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट हैज नो बाउंडेशन ऑफ एज, मीन्स इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट्स डेथ इज आल्सो सर्टेन बाय लॉ, मीन्स द पर्सन में कम, पर्सन में गो, बट कंपनी रन फॉर एवर, कंपनी जो चलती रहती है इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि अगर आपका कोई भी पार्टनर, कोई भी शेयर होल्डर रिटायर होना चाहे या डेथ हो जाए या रिजाइन करना चाहे तो जा सकता है, पर इससे कंपनी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी की कोई एज लिमिट नहीं है। अब यू कैन नो दैट ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कम इनटू इंडिया इन 1600 and now 2020, it means East India Company was established 420 years ago and this company exists in India till now. It means many persons come and the person got retirement, they expired, but the company is still moving on. तो यहाँ पर जो है कंपनी का कोई भी एक लिमिट है वो टाइम नहीं है, इसका कोई शेयर होल्डर से कोई संबंध नहीं है। शेयर होल्डर चाहे कहीं चले जाएं, मर जाएं या कुछ भी हो जाए, पर कंपनी चलती रहेगी। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। Limited liability means in company the liability is limited. In sole proprietorship, liability was unlimited. In a partnership, there was also unlimited liability. But in company, the liability is limited up to the extent of the share purchased into the company. कि आपने जितने कंपनी में शेयर परचेज कर रखे हैं, आपके जो पैसे वहीं तक डूब सकते हैं, इससे फालतू आपकी लायबिलिटी नहीं है। कि मान लो सपोज यू परचेज द share of a company for rupees 1000
and due to any of the mistake or due to any of the accident, the company has to pay a lot of money as a compensation, and company goes into liquidation or in the winding up, and you can't ask more than 1000 मनी। आपसे जो 1000 रुपये फालतू नहीं मांग सकते, क्योंकि आपने जो अमाउंट जो लगा रखा था कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा था वो ही पैसा डूब सकता है, इससे फालतू नहीं है। अगर हम यूं भी कहते हैं कि मान लो आपने एक शेयर खरीदा 10 रुपीज़ का, अभी तक कंपनी ने 8 रुपीज़ जो है वो उससे मांगे थे शेयर के ऊपर, तो मैक्सिमम आपकी जो लायबिलिटी 2 रुपीज़ की हो सकती है, यानी मीन्स आप 2 रुपीज़ 10 ही है जितना पैसा आपने इन्वेस्ट करने का उसमें शेयर कर रखा था, उतना ही जो एक कंपनी आपसे पैसे मांग सकती है, उसकी आपकी लायबिलिटी से ज़्यादा नहीं होगी। फोर्थ इज कॉमन शील। कॉमन शील, कॉमन शील कंपनी की जो कॉमन शील होती है, एक मोहर होती है कि जिस प्रकार से आपकी स्कूल की एक स्टैंप होती है, ठीक उसी प्रकार से कंपनी की भी एक कॉमन शील होती है, और कंपनी की कॉमन शील के बगैर जो है कोई भी डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं माना जाता है। इफ एनी डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड, the common seal is affixed on the document, and then any authorized person put their sign on it, then it became a legal document। अगर आपकी कंपनी की सील नहीं है तब तक वो डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल नहीं माना जाएगा या वो डॉक्यूमेंट जो वैलिड नहीं माना जाएगा। फिफ्थ है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। फिफ्थ इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। आपके जो शेयर्स हैं they can be transferred easily, means liquidation is there। In a partnership there was no facility of transferability of shares, but in the company the capital is divided into small part that are called as share, and these share can be transferred to any person at any time। means यहाँ पर कोई अपने शेयर के ट्रांसफरेबिलिटी में कोई कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट, separation of management from ownership। आपकी कंपनी के जो मैनेजमेंट है और ओनरशिप है बोथ आर डिफरेंट, वो अलग अलग हैं। ये बात अलग है कि वी elect the managing director, directors and other persons, means the company post holders are elected among the not necessary। हाँ जी, ये चीज़ें जो हैं आपकी अलग अलग मानी जाए, ठीक है। अगले हम देखें कि आपकी जो है कंपनी की काइंड ऑफ कंपनी, कंपनी कितने प्रकार की होती है, हम उसकी बात करते हैं। तो आपका जो एक बार फिर देख लो कि फीचर्स ऑफ द कंपनी कौन कौन सी हैं। पहला सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कंपनी की जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है। दूसरा परपेचुअल सक्सेशन, यानी उसका जो है सक्सेशन यानी वो एज जो कोई फिक्स नहीं है। और लिमिटेड लायबिलिटी, उसकी लायबिलिटी कंपनी की लिमिटेड है, यानी अप टू द शेयर परचेज्ड। एंड कॉमन शील, कंपनी की अपनी कॉमन शील होती है। और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, आपके शेयर जो ट्रांसफर किए जा सकते हैं इजीली। और सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट ऑनरशिप, ऑनरशिप जो मैनेजमेंट से बिल्कुल सेपरेट मानी जाती है, ठीक है जी। तो ये आपके पास भी थी कि फीचर्स ऑफ कंपनी। अब हम चलते जी, नेक्स्ट है दैट इज काइंड ऑफ कंपनी। कंपनी जो है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो कंपनी वैसे तो नॉर्मली तीन प्रकार की हैं आज के टाइम में, पर फिर भी क्योंकि जो पुराने ज़माने में कंपनी जो होती है आज के ज़माने में भी हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा, मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करना मेरे से, अभी क्लास चल रही है।
हाँ जी। तो अभी जो है ये आपकी जो थी, तो हम आगे देखते हैं कि आपकी कंपनी जो कितने प्रकार की आपकी होती है। बीच में कॉल आ जाती है भाई, बीच में डिस्टर्बेंस, आज मैंने इसको कॉल डाइवर्ट नहीं किया, ये गलती रह गई मेरे से। ठीक है। हाँ जी। तो कहता है काइंड ऑफ कंपनी, कंपनी जो कितने प्रकार की हैं। तो कंपनी आपके, हम इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं कंपनी को, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी कह सकते हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है आपकी मेनली 3 टाइप्स की होती है। ठीक है। तो ये आपके पास में है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है आपकी, वो मेनली जो बांटी गई है अनलिमिटेड कंपनी। फर्स्ट इज अनलिमिटेड कंपनी, एक तो होता है अनलिमिटेड कंपनी। उसके बाद दूसरी जो कंपनी है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और थर्ड जो आपके पास में है वो आपके पास कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ये आजकल चलती है। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो ये आपकी जो 3 टाइप की मेन कंपनीज हम मान के चलते हैं। ठीक है। अब हम इन तीनों कंपनीज के बारे में अभी आगे और आगे फर्दर देखते हैं। ठीक है। तो आपकी जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो वो आपकी कौन कौन सी होती हैं। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी उसमें कोई भी नहीं है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, इसके 3 टाइप्स हैं आपके, जो कि आज के दिन चलते हैं, मैंने अभी आपको बताया। एक तो आपका प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी। ठीक है जी। एक तो आपका है प्राइवेट कंपनी, दूसरी आपके पास में जी पब्लिक कंपनी, दूसरी आपकी है पब्लिक कंपनी। और तीसरी जो है वो आपकी है वन पर्सन कंपनी, यानी ओपीसी हम बोलते हैं। ये तो आपने प्लस वन में पढ़ा होगा। ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं जी आपकी सबसे पहले अनलिमिटेड कंपनी। दिस कंपनी इज नाउ नॉट इन एग्जिस्टेंस। ठीक है। सबसे पहले बात तो ये मान लो कि ये कंपनी आपके एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो यहाँ पर कहता है कि इट वाज जस्ट लाइक दिस प्रोप्राइटरशिप, there was no limit of the liabilities. Means if the company goes into liquidation due to any heavy loss, in that case the personal property of shareholder can be attached with the company, with company's liability. It means it is नॉट पॉसिबल इन दिस डेज। आज के दिनों में तो ये जो है कंपनी आज के टाइम में पॉसिबल है ही नहीं। तो पहले तो आपकी ये थी। दूसरी आपकी लिमिटेड है बाय गारंटी। तो सेकंड आपकी लिमिटेड बाय गारंटी है। तो लिमिटेड बाय गारंटी कहाँ ली हुआ कि ऐसी कंपनी जिसके जो मेंबर्स हैं वो गारंटी देते हैं कि इफ द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप, इफ कंपनी गोज इनटू द लिक्विडेशन, इन दैट केस दे विल मेकअप द लॉस। अगर कंपनी किसी कारण से लॉस में चली जाती है और ये कंपनी वाइंड अप हो जाती है, तो यहाँ पर जो लॉस होगा तो वो जो उसकी गारंटी देते हैं कि वो लॉस हम भुगतेंगे। तो ये केवल वाइंड अप की पोजीशन में ही जो है ये गारंटी मिलती है। ठीक है जी। तो पहली कंपनी तो अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, जस्ट लाइक सोल पार्टनरशिप। इसमें दूसरे में था कि कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी इफ द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन एंड एनी लॉस अराइजेज, देन द गारंटर विल पे द लॉस। ठीक है जी। और थर्ड है लिमिटेड बाय शेयर्स। यहाँ पर जो कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर है। मीन्स द कंपनी हैज ए नंबर ऑफ। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ। मैं अभी क्लास जा रहा हूँ सर, बाद में बात करूंगा। शायद इसका एडमिशन फॉर्म नहीं भरा आपने शायद अभी। ठीक है ना। हाँ हाँ। हो सकता है आपने प्रोस्पेक्टस मिलता 100 रुपये का, वो वाला फॉर्म नहीं भरा शायद आपने। ठीक है। हाँ ठीक है जी।
हाँ जी, सॉरी, फिर कॉल आ गई थी। हाँ जी, अब ये कहता है कि आपका जो है ये प्राइवेट कंपनी, आपका कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की बात कर रहे हैं। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर कंपनी के जो शेयर्स हैं वहीं तक जो है आपकी लिबर्टी लिमिटेड होती है शेयर होल्डर्स की। तो ये आपकी लिमिटेड बाय शेयर्स है। इसमें 3 टाइप की हो गई। नंबर 1 प्राइवेट कंपनी, ठीक है जी, और नंबर 2 आपकी है पब्लिक कंपनी। और आवाज़ नहीं आ रही आपकी? आवाज़ तो आ रही है मेरे पास में। अब आई आपके आवाज़? मैं देखता हूँ। ओके ओके, मैं देखता हूँ, देखता हूँ। हाँ जी, तो लेटेस्ट कम। तो आपका जो है इसमें ये करें कि आपकी जो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी, आपकी ओपीसी इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आपका कहते हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या है। तो प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी बड़ी अजीब सी डेफिनेशन है, आपके सामने कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी इज दैट कंपनी विच इज नॉट एन पब्लिक कंपनी। कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है। तो फिर पब्लिक कंपनी कौन सी होगी? तो पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो कि आपकी प्राइवेट कंपनी नहीं है, ठीक है ना। तो इस ये डेफिनेशन एक्ट में दी गई है। तो अभी जो प्राइवेट कंपनी का जो है वो डेफिनेशन है एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 68। तो सेक्शन 2 और सब सेक्शन 68 इसके अंदर जो डेफिनेशन दी है वो ये बोला है कि प्राइवेट कंपनी इज वन विच इज बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। प्राइवेट कंपनी इज वन, प्राइवेट company is one which is by its article of association, article of एसोसिएशन। यानी प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कारण से बनी है, ठीक है। कंपनी होती जो एक प्राइवेट कंपनी वो है जो कि अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से बनी है, वो आपकी कहलाती है प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप क्लास में पढ़ा था। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। तो जो कंपनी अपने इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन के दम पे बनी है वो आपकी कहलाती है प्राइवेट कंपनी, ठीक है जी। अब इसमें जो है आगे कहता है कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि प्राइवेट कंपनी की विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट ये है प्राइवेट कंपनी में कि रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स, मीन नॉट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, नॉट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होगी, नॉट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। यानी आपकी जो पब्लिक कंपनी है दैट कैन ट्रांसफर इट्स शेयर्स, वो अपने शेयर को आज है वो ट्रांसफर कर सकती है, मीन्स दे कैन परचेज और सेल दी शेयर्स। बट इन प्राइवेट कंपनी देर इज नो सच फैसिलिटी, ओनली द मेंबर्स इन द प्राइवेट कंपनी whose strength is up to 200 they can purchase their shares but they cannot sell it to another persons, वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। हाँ जी, लिमिट ऑफ नंबर इज मेंबर मेंबर लिमिट member limit is to up to 200। आपके जो मेंबर की लिमिट है वो 200 होंगी, यानी 200 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। इसमें आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको छोड़ दो, जो प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज़ हैं। अगर मान लो 50 एम्प्लॉयज़ और भी हैं वो आपके कंपनी मेंबर बने हुए थे, चाहे पहले के एम्प्लॉयज़ चाहे अब के हैं, तो 250 हो जाएंगे, जितने भी हो सकते हैं। तो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, इंक्लूसिव एम्प्लॉयज़, आपके जो है ये 200 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, ठीक है। कि आपके जो है ये एक्सक्लूसिव एम्प्लॉयज़ के एम्प्लॉयज़ को छोड़ करके, यानी अगर 200 मेंबर हैं, 50 एम्प्लॉय तो 250 तक हो जाएंगे। और थर्ड का रखिए प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन, नो इन्विटेशन टू पब्लिक, नो इन्विटेशन, नो इन्विटेशन टू पब्लिक। पब्लिक को जो किसी प्रकार का इन्विटेशन नहीं मिलता, यानी यू कांट सेल योर शेयर्स और डिवेंचर टू द जनरल पब्लिक, आप अपने शेयर्स और जनरल पब्लिक को नहीं बेच सकते हैं। तो ये भी आपकी इसमें रिस्ट्रिक्शन है।
तो आपकी यहाँ पर जो है, और चौथी एक लास्ट वो है कि प्राइवेट लिमिटेड वर्ड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड इज यूज्ड। प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जो है इसमें यूज किया जाएगा एट द एंड ऑफ द कंपनीज नेम। तो आपकी जो प्राइवेट कंपनी है उसकी चार जो है अलग से कुछ विशेषताएं हैं, दिस फोर फीचर्स। फर्स्ट, नो ट्रांसफरेटिव शेयर्स, कोई शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होगी, मीन द कंपनी कैन नॉट शेयर्स टू द अदर पर्सन। सेकंड इज मेंबर लिमिट इज अप टू 200 एक्सक्लूडिंग इट्स पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज। पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय को छोड़ के बाकी 200 मेंबर हो सकते हैं। नो लिमिटेशन है, नो इन्विटेशन टू पब्लिक, पब्लिक को आप किसी प्रकार शेयर या डिवेंचर खरीदने के लिए इन्विटेशन नहीं कर सकते। प्राइवेट लिमिटेड वर्ड इज यूज्ड, आपका जो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड है इसके लास्ट में यूज किया जाएगा, जबकि पब्लिक कंपनी होगी तो इसके पीछे पब्लिक वर्ड यूज किया जाएगा। ठीक है जी। आपका जो है नेक्स्ट है कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, तो इसकी जो है आपकी डेफिनेशन थी सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में, और जो आपकी पब्लिक कंपनी है उसकी आपकी जो दे रखी डेफिनेशन वो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 71, यानी इसके तीन सब सेक्शन के बाद में इसकी डेफिनेशन है। वैसे तो सेक्शन सेकंड में हमेशा ही डेफिनेशंस आती हैं। सेक्शन 1 में नेम आता है किसी भी चीज़ का, आप जो भी कोई अगर लॉ की बुक उठाएंगे तो आपका सेक्शन 1 में तो उसका जो लॉ का नेम है उसके बारे में डिटेल होता है, और फिर उसके सेकंड के अंदर हमेशा डेफिनेशंस होती हैं। तो यहाँ पर ये प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन दी गई थी, और यहाँ पर आपकी जो है पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन दी गई है। तो इसमें जो कहते हैं कि एज पर सेक्शन 2 सेक्शन 71 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ए पब्लिक कंपनी मीन्स कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, कि पब्लिक कंपनी वो है जो कि एक प्राइवेट कंपनी नहीं है। ठीक है जी। तो ये आपके पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बारे में बात की। कल जो है हम इसके डिफरेंस करेंगे, और डिफरेंस करने के बाद में फिर हम अगले 1% कंपनी है वो करेंगे। ठीक है जी। तो अभी आज में इतना ही। कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, किसी प्रकार प्रॉब्लम, कोई बुक के बारे में है, कोई और कोई कन्फ्यूजन है, कोई सिलेबस के बारे में है, अगर आपको कैसी है बोलिए। नोटबुक के लिए पूछा था, कल मैंने उसको ढूंढा भी था, मेरे मिली नहीं वो नोटबुक, कहाँ चेक होके कहाँ रख दी, कैसी क्या हुआ, आज फिर मैं दोबारा से फिर देखूंगा। अरे गुम कर लें तो कोई बात नहीं, और बना लेना, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे काम चलो कोई नहीं कर, कोई नहीं, नहीं करेंगे गुम, चिंता ना कर, मैं फ़ोन करके बता दूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, वो आंटी गुम करेगी, आंटी से कह देंगे। ठीक है ना। हाँ जी बोलो, बोली। अच्छा अच्छा, चलो मैं तो किताब बना दूंगा आपके लिए, कोई चिंता नहीं। हाँ बोलो, नेक्स्ट और कौन बोल रहा था, एक और बोल रहे थे कोई। हाँ बेटा बोलिए। कौन, विशाखा बोल रही है क्या? प्रोमिला बोल रही है? प्रोमिला, हाँ पेटी की बुक मिल गई थी आपकी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ओके, थैंक यू। चलो हम फिर मिलते हैं 12:05 पे। ठीक है। अरे बेटी मैं ध्यान ही नहीं पूरा, मैं कैसे कह दूं आपको चेक हुई कि नहीं हुई है, मैं पूरा कंफर्म नहीं हो गई। अरे भाई इतने काम होते हैं मेरे पास, इतना वर्कलोड होता है बेटा, आप सोच नहीं सकते। मेरे 4 4 क्लास से लेनी कंटिन्यू, वो भी उसके बाद में एडमिशन आ जाते हैं, उनकी बातें करनी, फिर और कोई काम आ जाते हैं, फिर उन्हें पीटी आ जाते हैं, कॉपियाँ आ जाती हैं, वो गुम हो जाती है, उनको ढूंढना, काफ़ी काम होते हैं मेरे पास में बेटा। ऐसा नहीं कि मैं करके राजी नहीं हूँ, मैं लगा रहता हूँ काम के। तो ठीक है ना, मैं आज जरूर कर दूंगा चेक आपको। ठीक है जी।